Hello students, standard 10, lecture 9, unit 2. Here in last lecture we were going through exercise 2.4. Now two questions left there to be understood. Now question number 3. If a minus b, a and a plus b are zeros of a polynomial p of x, x cube minus 3x square plus x plus 1, then find a and b. Now for a cubic polynomial, the formula is ax cube plus bx square plus cx plus d. Here I have written capital letters for coefficients of variables. Now if we compare both the equation and the given polynomial, then we will find that the coefficient of x cube is a and value of x cube coefficient of x cube is 1. So a equals to 1. The same way the coefficient of x square is b and the value of coefficient of x square is minus 3. So b equals to minus 3. For x, the coefficient of x is c and therefore the value of coefficient of x, that is 1. So c equals to 1. T, the constant, is 1. So d equals to 1. So here in this way we got the values of a, b, c, d, the coefficients. Now by the relation between coefficients and the zeros, we can say that sum of zeros equals to minus b upon a. This is the formula. We have already understood this in previous lecture. So sum of zeros equals to minus b upon a, and therefore sum of zeros, here you are given that a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial. Therefore sum of these zeros equals to minus b upon a. Value of b is minus 3 and value of a is 1, that we put here, and therefore we get 3a equals to 3. Minus b plus b will crossed and 3 times we have a, so 3a equals to 3. At the left hand side, 3 is in multiplication with a, so it will go in denominator at the right hand side. So we will get a equals to 3 upon 3 and therefore value of a equals to 1. So here we got the value of a. And now the product of zeros equals to minus t upon a, and therefore product of 3 zeros, it means which are zeros? The values of zeros are a minus b, a and a plus b. So their multiplication a minus b, a and a plus b, and the value of this multiplication is minus d a, and value of d is 1, value of a is also 1. So minus 1 upon 1, and therefore we get 1 minus b into 1 and 1 plus b. Why have I written 1 at the place of small a? Because see, in the sum of zeros we got value of a equals to 1. Look at there, here we got value of a equals to 1, therefore I have put here 1. In center this 1 is in multiplication. If anything is multiplied with 1, whatever we have multiplied that we get. It means 1 minus b and 1 plus b are multiplied with 1, therefore we get 1 minus b into 1 plus b. Okay, and now the expansion of these two factor is 1 minus b square equals to minus 1. 1 minus b and 1 plus b, expansion of these two bracket is 1 minus b square. If we bring this one at the right hand side, we will get minus b square equals to minus 1 तो पहले से था ही, लेकिन ये जो 1 लेफ्ट हैंड साइड में वो सामने आ गया, तो माइनस 1 दूसरा मिला, तो हमें फाइनली क्या वैल्यू मिला? माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2. अभी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो माइनस है वो क्रॉस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मिलेगा, और बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो सामने स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट प्लस रूट 2 का भी स्क्वायर रूट प्लस रूट 2 का भी स्क्वायर 2 होता है, माइनस रूट 2 का भी स्क्वायर 2 ही होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस रूट 2 लिखेंगे. तो ये हमें मिल गया b का वैल्यू.
तो ऐसे हमें ए और बी का वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक से देख लीजिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन x raised to 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by x square minus 2x plus k, we get remainder x plus a, then find k and a. So first of all we have to do the whole division process. So first when we divide the big one polynomial, the polynomial having greater degree with the polynomial having smaller degree, the question will be, the first question will be x raised to 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर क्वोशंट मिलेगा। अभी ये जो x स्क्वायर क्वोशंट मिला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, डिवाइज़र के साथ में, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k के साथ में। सो वी गॉट दिस प्रोडक्ट of quotient and divisor, x raised to 4 minus 2x cube plus kx square। अभी डिविडेंड में से ये जो प्रोडक्ट मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए इसके साइन चेंज करेंगे प्रोडक्ट के। अभी सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो x4 और माइनस x4 तो क्रॉस हो गए। अभी माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, माइनस 6 प्लस 2, एक माइनस एक प्लस है तो आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन तो माइनस 4x क्यूब मिला। अभी x स्क्वायर वाले टर्म्स में 16 और माइनस के, 16 माइनस के कोएफिशिएंट्स का ही हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है या एडिशन करना होता है। वेरिएबल तो पीछे वन टाइम ही लिखना है, जैसे यहाँ पर x क्यूब तो हमने 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। तो x स्क्वायर तो हमें एक ही बार लिखा है, लेकिन उसके कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन 16 माइनस के, उसके कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन माइनस 25x नीचे आएगा, 10 भी नीचे आएगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट फिर से इसी तरह से ये जो फर्स्ट डिविडेंड जो हमें मिला उसका जो फर्स्ट टर्म है माइनस 4x क्यूब, उसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा दूसरा क्वेश्चन जो है माइनस 4x। अभी क्या करना है, माइनस 4x जो हमें क्वेश्चन मिला उसको हमें ये जो डिवाइज़र है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट उसका लिखना है। तो वो प्रोडक्ट लिखेंगे हम। तो प्रोडक्ट जो हमको माइनस 4x और जो डिवाइज़र था उसका प्रोडक्ट जो मिला वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस 4x क्यूब 8x स्क्वायर माइनस 4kx। अभी सब्सट्रैक्शन करना है तो 4x क्यूब और 4x क्यूब तो उसको क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर होगा। क्या बोला मैंने, तो 16 माइनस के और माइनस 8 एक ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 16 माइनस के और x स्क्वायर को लिखा था बाहर, तो वैसे ही 16 माइनस के माइनस 8 और ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 16 माइनस के माइनस 8 और ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्लस 8 आएंगे, तो आप लिखेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, और x में क्या होगा, माइनस 25x और प्लस 4kx। तो x तो वन टाइम लिखेंगे और माइनस 25 प्लस 4k, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस 25 प्लस 4k और पीछे x, 4k प्लस है तो मैं उसको आगे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 4k माइनस 25 लिखूँगा। तो ये मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया है, 4k प्लस है आगे लिखा है और माइनस 25 पीछे लिखा है और x लिखा है साथ में, ऊपर से 10 नीचे आएगा। अभी ये जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म को हम डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, और अभी फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिला, वो क्वेश्चन मिला है 8 माइनस के। 8 माइनस के को डिवाइज़र के साथ में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखना है। तो माइनस 8 के को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया,
फिर 8 माइनस के को मैंने 2 इंटू एक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 8 माइनस के 2 इंटू और साथ में एक्स भी लिखा है, 8 माइनस के को के साथ में मल्टीप्लाई किया, और सबका साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए आप इसे रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप कर फिर से देखिएगा और फिर ओरली अपने आप सॉल्व कीजिएगा। मिस्टेक होती है तो फिर से देखिएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा। अभी यहाँ जो रिमाइंडर है वो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस और 8 माइनस के एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस है, वो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों क्रॉस हो गए। और 4k माइनस 25 और माइनस 2 इंटू 8 माइनस के, और पीछे x तो ऐसे ही लगा रहेगा, तो इनका टोटल हमें करके लिखना है। तो वो टोटल में यहाँ साइड में आपको एक्सप्लेन कर, तो ऐसे टोटल करना है आपको किसका, 4k माइनस 25 और माइनस 2 इंटू 8 माइनस के, और बाहर x लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4k माइनस 25 माइनस 2 इंटू 8 माइनस के, और बाहर x लिखा है। अभी मैंने ये जो 2 इंटू 8 माइनस के का ब्रैकेट ओपन कर दिया है, 2 इंटू 8 16, और 2k माइनस माइनस प्लस 4k और 2k 6k होगा, और 25 माइनस 16। यहाँ पर एक साइन चेंज हो रहा है, ये जो 2 जो है उसके आगे क्या है, प्लस है, तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। तो फिर अंदर का जो माइनस साइन है वो माइनस ही रहेगा। ओके, अभी 4k माइनस 2k तो 2k आएगा, और 25 माइनस 16, माइनस 25 प्लस 16, इनका सब्सट्रैक्शन हो गए, ओके वैल्यू मिलेगा -9। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 4k माइनस 2k 2k आया, और 25 में से 16 जाएगा तो -9 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है रिमाइंडर का, बाकी जो स्टेप बचा है वो लिखना है 10, फिर -8 माइनस के और ब्रैकेट के बाहर के, ये हमें लिखना है। इसका टोटल वैल्यू क्या होगा वो हम लिखेंगे। तो 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के, 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के, 8 और के का मल्टीप्लिकेशन 8k, माइनस के और के का मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये मुझे प्रोडक्ट मिला। तो वो टोटल मिला मुझे ये दोनों टर्म्स का, तो मैं टोटल को यहाँ पे लिखता हूँ रिमाइंडर में। तो ये टोटल जो मुझे मिला 10 और ये दोनों टर्म्स का, वो मैंने नीचे ब्रैकेट करके लिखा है। तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ, पूरा डिवाइडेशन पूरा हो गया है। कैसे पूरा हो गया है, तो यहाँ पर अब जब वेरिएबल x जो है उसका डिग्री 1 है, और यहाँ डिवाइज़र में x का डिग्री 2 है, तो जब भी जो भी हमारा यहाँ पर डिविडेंड जो आता है, आगे प्रोसेस करते करते जो डिविडेंड हमारे पास आता है, उस डिविडेंड में x का जो डिग्री है वो डिवाइज़र के डिग्री से स्मॉलर हो जाता है, तो फिर डिवाइडेशन आगे नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया गया उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। अभी रिमाइंडर हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, जो कि हमें दिया था x प्लस a। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, x प्लस a रिमाइंडर आपको दिया हुआ है। तो आप हमें जो क्वेश्चन में रिमाइंडर मिला वो, और हमें जो दिया हुआ रिमाइंडर था वो हमने कंपेयर कर दिया है, और दोनों साइड में x यहाँ पर है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो x है, और ये दोनों साइड में सेम डिग्री वाली पोलिनोमियल्स है। ये भी x का 1 डिग्री है, यहाँ पर भी x का 1 डिग्री है, तो सेम डिग्री वाली पोलिनोमियल्स है। तो उनके वेरिएबल्स जो है x सिमिलर डिग्री वाले जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट्स हम इक्वल बोलेंगे। मतलब इसका ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड में उसका कोएफिशिएंट है 2k माइनस 9, तो राइट हैंड साइड में जो x है उसका कोएफिशिएंट है 1, तो 2k माइनस 9 और 1 हम उनको इक्वल बोलेंगे। एंड द सेम वे कांस्टेंट कौन सा है, a है, तो यहाँ पर कांस्टेंट, ये पूरा ब्रैकेट हम कांस्टेंट वैल्यू में लेंगे, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू में कौन है, a है, तो a, और ये जो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर है वो जो पूरा टर्म है उसकी वैल्यू कांस्टेंट a के इक्वल टू में है, तो हम लिखेंगे। और फिर समझ रहे हो ना आप कि ये जो पूरा वेरिएबल, ये जो पूरा हमें रिमाइंडर मिला है उसका डिग्री कितना है, 1 है, x वेरिएबल और ये कांस्टेंट, 1 डिग्री वाला x वेरिएबल और ये कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड में हमें रिमाइंडर दिया हुआ था वो भी x 1 डिग्री वाला x और साथ में a कांस्टेंट। तो दोनों सेम डिग्री की पोलिनोमियल से
तो सेम डिग्री की पोलिनोमियल्स इक्वल टू के साथ में हमने लिखी हुई है लेफ्ट एंड राइट में, तो दोनों के सिमिलर डिग्री वाले वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो गए। तो x का कोएफिशिएंट 2k-1 और ये जो x है उसका कोएफिशिएंट 1, दोनों इक्वल हो गए। और वैसे ही यहाँ जो कांस्टेंट है वो दोनों भी इक्वल हो गए। अभी -9 1 के साथ में प्लस हो जाएंगे, तो 2k इक्वल्स टू मिलेंगे हमें 10 मिलेंगे, और 2 जो है k के साथ में वो 10 के डिवाइडेशन में जाएंगे, तो k इक्वल्स टू मिलेंगे 5। और k की वैल्यू हम a वाला जो टर्म है उसमें इनपुट कर देंगे। तो k की वैल्यू 5 मैंने यहाँ पर इनपुट कर दी है, तो 5 का स्क्वायर 8 इंटू 5 40 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 एंड 20 35 होता है, 40 और 35 का सब्सट्रैक्शन होगा, ये माइनस है और वो 35 प्लस आएंगे, तो 40 और 35 का सब्सट्रैक्शन आएगा -5, तो a इक्वल्स टू मिला -5। तो यहाँ पर मैंने यूनिट 2 कंप्लीट कर दिया है। और आज जो दोनों क्वेश्चंस कराए थे 2.4 जो है वो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस का एक्सरसाइज था, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर स्टाइल में टफ टाइप के क्वेश्चंस जब होते हैं तो उसमें हमने अगर ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो दिमाग फिर उसमें चल सकता है। ओके, थैंक यू, बी प्रिपेयर्ड। और ये जो यूनिट 2 है उसका हम संडे टेस्ट लेने वाले हैं, मैं उसका मैथ्स का पेपर दूंगा, आपको वो सॉल्व करना रहेगा, तो पूरा यूनिट 2 आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए।